اسے میری مداخلت گراں گزری اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بول کر رہ گیا۔ میں ناشتہ کر کے پوری تیاری کے ساتھ جلال کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ 8:30 بجے اس کی گاڑی کا ہارن سنائی ہی دیا تھا کہ میں گھر سے باہر نکل آیا۔ غنیمت ہے کہ مندر کو آگ لگانے کے بعد سوبراج نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جلال نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خاموشی نک کی شامت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اسے علم ہو چکا ہے کہ نک کل کراچی بلکہ پاکستان سے جانے والا ہے۔ وہ پوری تندہی سے اس کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا۔ کل تک یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، مگر آج یہ ایک اٹل حقیقت نظر آ رہی ہے۔ کم از کم اس معاملے میں اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ تم نیک اور شریف سرکاری افسر ہو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں نے ہنس کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تم نے ان دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تمہاری ان کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یہ الزام نہ دو، میں نے کوئی بدگمانی پیدا نہیں کی، بس حقائق کو ان کے علم میں لاتا رہا۔ اسی سے بات بگڑی ہے۔ اگر تم نک کو یہ نہ بتاتے کہ سوبراج نے میری کلارک کے روپ میں راج محل میں آنے والی ویرا کو پکڑ لیا تھا اور اپنی رازداری کے باوجود اس کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھا، تو شاید آج کے حالات مختلف ہوتے۔ اس میں جھوٹ شامل نہیں تھا، یہ کھلی حقیقت تھی۔ کبھی کبھی حقیقتیں بھی گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں، ان سے فرار مشکل ہو جاتا ہے۔ میری دلی آرزو ہے کہ سوبراج اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ جلال کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ اب کونسل خانے میں کس کس سے سامنا ہوتا ہے، میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا۔ کوئی بھی ہو، ہمارا فیصلہ اٹل رہے گا۔ ڈی آئی جی سے میری مفاہمت ہو گئی ہے۔ ان کی امدادی پیشکش کے بارے میں وہ میرا ہم خیال ہے۔ ان موضوعات پر منتشر سی گفتگو کے دوران میں ہمارا سفر طے ہو گیا۔ اس وقت جلال کسی مصلحت کے بنا پر سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی میں ڈرائیور کے بغیر آیا تھا۔ ہم کونسل خانے کے پھاٹک پر پہنچے تو میرا خیال تھا کہ گاڑی کو کسی روک ٹوک کے بغیر اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سرکاری نمبر پلیٹ کا صرف اتنا فائدہ ہوا کہ گاڑی کو پھاٹک سے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر پھر بھاری رکاوٹوں اور مسلح محافظوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ایک باوردی امریکی افسر کے ایما پر ہم دونوں کو گاڑی سے اترنا پڑا۔ ایک ٹیم اپنے حساس آلات کی مدد سے گاڑی کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئی۔ وردی والے ہماری جامع تلاشی لیتے ہوئے نرم معذرتی کلمات ادا کر رہے تھے۔ ان کا سارا زور ایک نقطے پر تھا کہ پورا شہر دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ مجرموں کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور مقامی انتظامیہ اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود ان پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس لیے ان لوگوں کو اپنے طور پر غیر معمولی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا پڑ رہی تھی۔ جلال سرد انداز میں تحکم امیز خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان لوگوں نے اپنا کام بہت تیزی سے نمٹایا اور 1.5-2 منٹ کے مختصر سے وقفے کے بعد ہمیں گاڑی سمیت اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ پارکنگ لاٹ میں ایک اور گورا ہمارا منتظر تھا۔ ہماری گاڑی پارک ہوتے ہی وہ تیر کی طرح ہماری طرف آیا تھا۔ اس نے جلال سے اس کے نام کی توثیق چاہی اور تصدیق ہوتے ہی پرتپاک انداز میں ہم سے باری باری ہاتھ ملانے لگا۔ بظاہر وہ استقبال کرنے کا ایک خوشگوار انداز تھا، لیکن مجھے اس کی طے میں ان کی اشتباہ امیز حکمت عملی کار فرما نظر آ رہی تھی۔ وہ باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کو یہ موقع دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ وہ غیر ضروری طور پر کونسل خانے میں آزادی سے بھٹکتا پھرے۔ ہر مہمان کو پھاٹک سے پارکنگ لاٹ تک اخلاق اور نرمی سے گھیر گھار کر براہ راست اس مقام پر پہنچانے کا بندوبست کیا گیا تھا جہاں اس کی ملاقات کا وقت پہلے سے متعین تھا۔ اپنے حد سے بڑھے ہوئے خوف کو احتیاطی تدابیر کا نام دے کر ان دنوں کونسل خانے نے ویزا کے اجراء اور درخواستوں کی وصولی کا کام سرے سے معطل کیا ہوا تھا۔ اس لیے عمارت کے احاطے میں عجیب سی ویرانی اور بے رونقی کا راج تھا۔ اپنے امریکی مددگار کی رہنمائی میں ہم دونوں عمارت کے خاصے اندرونی حصے میں ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو میری رسٹ واچ 9 بجے سے 2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ کمرہ آراستہ اور کشادہ تھا۔ اس میں ایک بڑی میز کے گرد 8 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے 4 پر کچھ افراد براجمان تھے۔ ان میں سے ایک شہر کا ڈی آئی جی تھا جو اپنی وردی کی بنا پر دور ہی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ بقیہ 2 چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ ان میں سے چوتھا فرد نک تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سب سے پہلے اپنی کرسی چھوڑی تھی اور غیر رسمی انداز میں میری طرف لپکا تھا۔ یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ جلال کے ساتھ تم بھی آ گئے، اس نے پرتپاک انداز میں مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کراچی چھوڑنے سے پہلے میں تم سے مل لوں۔ میں جلال کا ممنون ہوں کہ اس نے یہ موقع فراہم کر دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں تم سے ملاقات ہو سکے گی، میں نے کہا۔ ٹام کو بھی آنا تھا مگر اسے رات ہی سے پیچش ہو گئے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ تعارف کا سلسلہ شروع ہوا تو پتا چلا کہ گیری نامی امریکی شخص پینٹاگون کا نمائندہ تھا
और इस इजलास में वही सबसे सीनियर था। जैक नामी शख्स का ताल्लुक अमेरिका के महकमा इंसाफ से था। रस्मी मिजाज पुरसी खत्म होने के बाद सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। वो इजलास बहुत कलील नोटिस पर मुनक्कद हो रहा था, लेकिन हर शख्स के बुशरे से जाहिर हो रहा था कि पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद था। यस सर। कदर तवक्कुफ के बाद गैरी ने DIG से मुखातिब होकर कहा, दोनों मुजरमों के बारे में हमारी पेशकश। जरा एक मिनट। निक ने उसकी बात काट कर मुआज़त खाना लहजे में कहा, असल मौजू पर बात शुरू करने से पहले क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि इन लोगों को ताज़ा तरीन वाक़े से भी बाखबर कर दिया जाए? मेरी गुफ्तगू का अगला नुक्ता यही था। गैरी ने सर हिलाते हुए कहा, तुम कहते हो तो अब मैं इसी से इब्तदा करता हूँ। इन लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि इनकी नाक के नीचे परवरिश पाने वाले मुजरमों के हौसले कितने बढ़ चुके हैं। उसके अल्फाज में छुपा हुआ तहकीर और तनफ्फुर का उनसर बहुत नागवार गुजरा, लेकिन मैं जुबान बंद करके उसकी बात पूरी होने का मुंतजिर रहा। घर से यहाँ आते हुए निक पर कातलाना हमला हुआ है। गैरी ने DIG से मुखातिब होकर सर्द लहजे में कहा। निशाना बहुत बेखता था। निक को यहाँ लाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो शायद हम इस वक्त निक की नोहागिरी कर रहे होते। ओह, ये कब हुआ? ये वाक़या कहाँ पेश आया? DIG ने मुस्तरिब होकर अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। गैरी की सुनाई हुई उस खबर ने मुझे भी चौंका दिया था। मुझे तवक्का नहीं थी कि सोबराज हर खतरे को नज़रअंदाज करके इतनी तेज़ी से काम दिखाने की कोशिश करेगा। कहीं कोई रिपोर्ट नहीं की गई, निक ने कहा। किसी भी आवाज़ हथियार से 2 गोलियां चलाई गई थीं। बुलेट प्रूफ शीशे इन गोलियों को ना रोकते तो वो मेरे सर या चेहरे में पवस्त हो सकती थी। ये फायर इस वक्त किए गए जब मेरी गाड़ी अहाते से निकल रही थी। इसका मतलब है कि कोई पहले से वहां मेरी घात लगाए बैठा हुआ था। मेरा ड्राइवर तेजी से गाड़ी निकाल ले गया और मैं यहाँ पहुंच गया। इस खुशनसीबी पर तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, मैंने बेसाख्ता मुस्सरत से कहा। मुझे उसके बचने से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि सोबराज ने निक के खिलाफ अपना काम शुरू कर दिया था। तुम्हारी दानिश में ये काम किसका हो सकता है? जलाल ने बकराती अंदाज में पूछा। इसके लिए जरूरी था कि वो इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करे। डैनी एंड सोबराज, निक के बजाय गैरी ने कहा। इस वक्त सिर्फ वही 2 हरीफ हमारे सामने हैं। इनकी गर्दनों को नापना जरूरी हो गया है। इनकी तलाश के लिए हम अपने सारे वसाइल बुरकार ला चुके हैं। DIG पूरे पस मंजर से बेखबर था, इसलिए उसका लहजा माजत खाना था। दोनों बहुत हाई प्रोफाइल मुजरिम हैं। इनके लिए तुम्हारे वसाइल नाकारा हैं, जैक ने सर्द महरी से कहा। हमारी मदद के बगैर तुम इनको नहीं पकड़ सकोगे। इंसाफ के तकाजों को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए तुम्हें गैरी की पेशकश को कबूल कर लेना चाहिए। तुम्हारी बात दुरुस्त है। DIG से पहले जलाल बोल पड़ा। हम खुद भी यही महसूस कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसी किसी डील के लिए साजगार नहीं है। लोग शोर मचा देंगे कि पुलिस का महकमा अमरीकियों के हाथ में दे दिया गया। हम हालात ले लेंगे मगर इनको हमारा अमला इस्तेमाल करेगा। गैर तरबियत याफ्ता अफराद इन हालात से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, गैरी ने बेरुखी से कहा। मैं तरबियत के लिए अपने आदमी नामजद कर दूंगा, DIG ने कहा। यह बच्चों का खेल नहीं है। जब तक तुम्हारे आदमी इन आलात वगैरह का इस्तेमाल सीखेंगे, सोबराज और डैनी मिलकर यहाँ एक कयामत बर्पा कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में 8-10 हफ्तों के लिए 3 अमरीकी माहिरों के बैठने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तालीम और तरबियत के लिए दुनिया भर में ऐसी तैनातियाँ होती रहती हैं, कहीं कोई शोर नहीं होता। इस खित्ते के हालात मुख्तलिफ हैं, मैंने नरमी से कहा। यहाँ आमतौर पर अमरीकियों को पसंद नहीं किया जाता। तुमने सरकारी तौर पर अमरीकी शहरियों को हदायत की हुई है कि वो नागुज़ीर ज़रूरत के बगैर इधर का रुख न करें, और इधर आना ही पड़े तो अपनी नकलो हरकत को महदूद रखें। ये हालात हमें गैर मुल्की ताउन की इजाज़त नहीं देती। यह तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन हम इंसाफ के तकाज़ों के पेश नज़र ऐसा ताउन जरूरी समझते हैं। इस तरह वो काली भेड़ें भी बेनकाब हो सकेंगी जो तुम्हारी सफ़ों में शामिल होकर मुजरमों के हाथ मजबूत कर रही हैं। ऐसे लोगों के एहतसाब के लिए हमारा अपना निज़ाम है, DIG ने कदरे खफगी से कहा। हम अपनी फोर्स की ततहीर के लिए दूसरों की मदद के मोहताज नहीं हैं। यह तुम्हारा ख्याल है, लेकिन एक बड़ी तादाद डैनी के हवाले से ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि तुम लोग सरकारी सतह पर जो कुछ कहते रहते हो, अमली हक़ाइक़ इससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। वरना यह कैसे मुमकिन है कि एक शख्स कानून की गिरफ्त से मुसलसल बचा रहे। इस बार गैरी ने जैक की बात आगे बढ़ाई थी। इसके सिलसिले में तुम लोग भी नाकाम रहे हो। तुमने इसके खिलाफ हर रवायती और गैर रवायती हरबा आजमा कर देख लिया है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है, जलाल ने जवाब दिया। तुम लोगों ने खुद एतराफ़ किया है कि वो अमेरिका भी हो आया है। उसने वहाँ एक हंगामा बर्पा कर दिया था। वहाँ भी उसे तुम घेरने में कामयाब नहीं हो सके। वो गैर मामूली केस है। निक ने अपने साथियों को खिफत से बचाने की कोशिश की। उसका आम मुजरमों से मवाजना नहीं किया जा सकता। तुम लोग ये बात अपने जहन में बिठा लो तो फिर तुम्हें हमारी कारकर्दगी में कोई नक्स नजर नहीं आएगा, जलाल ने कहा।
मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा था। जैक ने अपनी सफाई पेश की। मेरे कहने का मतलब यह था कि तुम्हारे पास मालूमात हैं, हमारे पास आला तरीन पेशा वराना महारत के साथ जदीद वसाइल भी हैं। अपने मुश्तरक मुजरमों के खिलाफ हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस तरह बहुत जल्द अच्छे नताइज सामने आएंगे। इस बारे में मैं तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुका हूँ। इस बार मैंने जवाब दिया, तुम हमारे अफसरों की तरबियत के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये बहुत ही सास मामला है। गैरी ने नई कलाबाजी खाई। हम अपने जदीद तरीन आलात किसी वसी तर मफाहमत के बगैर किसी और को नहीं सौंप सकते। फिर इनका जिक्र बेसूद है। वो साफ बात हो जाने के बाद जलाल ने दो टुक लहजा में जवाब दिया, तुम साजो सामान नहीं दे सकते, हम तुम्हारा हमला कबूल नहीं कर सकते। बात खत्म हो जाती है। क्या तुम भी जलाल के हम ख्याल हो? गैरी ने डीआईजी से पूछा। इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, डीआईजी ने पुरजोर लहजे में कहा। पुलिस का दायरा कार महदूद होता है। एजेंसियों को अपने कामों की तकमील के लिए बेहतर वसाइल दरकार होते हैं। तुम्हारी तजवीज़ का ज़्यादा ताल्लुक जलाल और कर्नल दावर से है। मेरा महकमा इन सहूलतों से सिर्फ ज़िमनी फ़ायदे हासिल कर सकता था। पुलिस का किरदार इतना महदूद नहीं होता। सोल्जर बाजार के इलाके से हमारी आदमी को तुम्हारी फोर्स ने अपनी तहवील में लिया था, जैक बोला। डीआईजी की नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं। क्या तुम इस नाखुशगवार वाक़े को भी ज़ेर बहस लाना चाहते हो? कतई नहीं, जैक ने साफ इनकार कर दिया। मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई भी वाक़या रुन्मा होने के बाद सबसे पहले पुलिस हरकत में आती है और मामला इसके इख्तियार से बाहर हो तो इसे मुतलका लोगों के सुपुर्द कर देती है। डीआईजी ने उसकी बात में इजाफा कर दिया। यह जिक्र निकल ही आया है तो ये बताओ कि इस बारे में क्या पेशरफ्त हुई है? जैक बोला। कुछ नहीं। डीआईजी के मुंह तोड़ जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। जिंदा पकड़े जाने वाले कमांडो के बयान में जो झोल हैं वो तुम्हारी नजरों से ओझल नहीं होंगे। इस केस पर किसी ज़हीन अफसर ने काम शुरू कर दिया तो वो कहानी बेनकाब हो जाएगी जिसे छुपाने के लिए कमांडो ने एक बेसरुपा बयान दिया है। वाकयात कुछ भी रही हूं, ये बात हर शक को शुबे से बाला है कि वो दोनों डैनी का निशाना बने थे। निक ने जोर देकर कहा, डैनी हमारे एक कमांडो का कातिल है। वो पकड़ा गया तो इससे इस खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। हम सब उसकी तलाश में लगे हुए हैं, जलाल बोला। सोल्जर बाजार में कमांडोज वाला वाकया पेश ना आता तब भी डैनी की तलाश की मुहिम जारी रहती। वेरी गुड, निक एक गहरा सांस लेकर बोला। मैं भी यही कह रहा हूं। हमारे आदमी के बयान से कताए नजर डैनी की तलाश जरूरी है और अब सोबराज का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुका है, मैंने याद दिलाया। निक सारी हिला कर रह गया। फोन पर वो मुझसे खुलकर बातें करता रहा था। मुझे मालूम था कि सोबराज किस वजह से इन लोगों के अताब का निशाना बना था, लेकिन इस इजलास में निक समेत किसी ने भी सोबराज के बारे में अंदर की वो बातें नहीं छेड़ी थी। गुफ्तगू के दौरान में कॉफी लाई गई मगर मैंने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। मैं पूरी तरह मोहतात था कि वहां किसी चीज पर अपने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ूं जिन्हें वो बाद में अपने रिकॉर्ड का एक हिस्सा बना सके। मुझे मायूसी हुई है कि हमारा यह इजलास नतीजा के साबित नहीं हो सका, गैरी ने अपने शाने उचका कर कहा। मेरा अंदाजा था कि हम मिलकर बैठेंगे तो आइंदा के लिए एक दूसरे के काम करने की राह निकल आएगी। देखा जाए तो हम अब भी एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं, डीआईजी ने जवाब दिया। हमारे हदफ मुश्तरक हैं, हम सब कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। बस फर्क इतना सा है कि हमारे तरीके अलग अलग हैं। बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूं, मैंने गैरी से मुखातिब होकर कहा। एक नहीं दो बातें पूछ लो, उसने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारी तरफ से इस इजलास का इनेकाद क्या इस बात का गुमाज नहीं है? क्या पेंटागन वाले भी इन मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं? मैंने पूछा। अमेरिका की हदूद से बाहर होने वाली हर सरगर्मी में मेरा महकमा किसी न किसी हद तक मुलव्विस होता है। अपने मतलूब मुजरमों को अमेरिका लाकर इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाना भी मुल्की दिफा के जुमरे में आता है और फिर यह मामला ज्यादा अहम है, गैरी ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। हम जिन आलात और सहूलतों की बातें कर रहे हैं वो सब हिस्सास दिफाई नौयत की हामिल हैं और पेंटागन की तहवील में है। बात बन जाने की सूरत में सारा बंदोबस्त मुझ ही को करना होता। गैरी को एतराफ ख्याल अंगेज था। बात रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही थी। कराची में अपने कई बावर्दी मुलाजमीन की जानों से हाथ धो लेने के बाद अमरीकी महकमा दिफा बराह रास्त इन मामलात में कूदने की तैयारी कर रहा था। यह गनीमत हुआ कि इनकी पेश की हुई तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई थी, वरना पेंटागन वाले कराची में अपने पैर जमाने के बाद अपने मतलूब मुजरिम की गिरफ्तारी के नाम पर कोई भी महदूद फौजी ऑपरेशन शुरू कर सकते थे। इनको एक बार मुदाखलत की इजाज़त दे देने के बाद महज इंतजामी सतह पर इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। फनी इमदाद और सहूलतों की फराहमी के नाम पर कराची में मामूर किए जाने वाले अमरीकी अफसर पूरी इंतजामिया के लिए एक अजाब बन जाते। मैंने इस कमरे में दाखिल होने के बाद निक की सूरत देखते ही अंदाजा लगाया था कि इस इजलास में वो मामलात भी ज़ेरे बहस आ सकते थे जिनमें मेरे यानी कर्नल दावर और निक के दरमियान मुज़ाकरात चलते रहे थे। इन लोगों के लिए वो बहुत ही सास मौज़ूआत थे।
जिनमें से सोबराज और डैनी के तबादले वाला मामला सबसे अहम था। मेरे लिए ये बावर करना मुमकिन नहीं था कि गैरी और जैक को इन सब बातों की कोई भनक नहीं मिली होगी। इन दोनों ने सब कुछ जानते बूझते अपनी जुबानें सख्ती से बंद रखी हुई थीं और इन खुफिया मामलात के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा था। काफी देर बाद उनकी पूरी इसरार खामोशी का जवाब मेरी समझ में आ गया। ये बात वो सब जानते थे और बरमला इसका इजहार करते रहते थे कि डैनी के बारे में पाकिस्तानी हुक्काम के दिलों में नरम गोशे मौजूद थे। इन सफ़ों में सिर्फ कर्नल दावर ऐसा आदमी था जो डैनी की हद से बड़ी हुई आज़ाद रवि और खुद सरी को पसंद नहीं करता था। निक के साथ तय होने वाली डील कर्नल दावर ने अपनी ज़ाती हैसियत में की थी। इसका दूसरे अफसरान से दूर का भी ताल्लुक नहीं था। शायद इनके जहनों में डैनी की कैद और फिर यकायक फरार के बारे में बहुत से सवालात कलबला रहे हों, मगर वो जलाल और DIG के सामने इस बारे में कुछ नहीं पूछ सकते थे। वो सब इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि अपने असल मिशन में नाकाम रहने के बावजूद निक ने यह कामयाबी ज़रूर हासिल कर ली थी कि वो STF की नाकाबिल शिकस्त सफ़ों में दरार डालकर डैनी के खिलाफ कर्नल दावर की हमदर्दियां हासिल करने में कामयाब हो चुका था। वो एक तवील मुद्दत के बाद अपने हाथ आए हुए इस मोहरे से महरूम नहीं होना चाहते थे। इनमें से हर एक के जहन में ये बात मौजूद रही होगी कि डैनी एक बार कर्नल दावर के चुंगल से निकल गया था, लेकिन बाद में वो दोबारा इसके काबू में आ सकता था। वो इन दर पर्दा मामलात को मौजूद सुखन बनाकर ऐसे इम्कानात ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ ज़रबात नजर आ रही हैं। काफ़ी नोशी के दौरान में गैरी ने मुझसे कहा, क्या तुम इस सीनियर पोजीशन में भी मारधाड़ के कामों में हिस्सा लेते रहते हो? मुझे खुशी हुई कि उसने वो सवाल पूछ लिया। वो छोटे सुनील के घर के बाहर अमेरिकी कमांडो से होने वाले मुकाबले का नतीजा थी, मगर मैंने निक को इनके बारे में कोई और कहानी सुनाई थी। मुझे अंदेशा था कि किसी वक्त निक से सामना हुआ तो मेरे चेहरे पर नजर आने वाले वो निशानात उसे शक को शुबे में डाल देंगे। ऐसे किसी इम्कान का इंतजार करने के लिए मैंने फ़ोन पर उसे यह बताया था कि डैनी मेरे साथ मुकाबला करके मेरी कैद से फरार हुआ था। गैरी के सवाल पर मैंने मुस्कुरा कर निक की तरफ देखा और कहा, जरूरत पड़ जाए तो पोजीशन का ख्याल किए बगैर सब कुछ करना पड़ता है। चेहरे पर नजर आने वाली चोटें मामूली हैं, मगर ये इस गहरी चोट की गुमाज हैं जिसे मैं एक मुद्दत तक फरामोश नहीं कर सकूंगा। तुम जुमानी मुस्कुराहट के साथ निक की तरफ क्यों देख रहे हो? जैक ने सवाल किया। खुलकर हमें भी कुछ बताओ। ये गैर जरूरी और जाती बातें हैं, इनके लिए ये फॉर्म मुनासिब नहीं है। निक ने जल्दी से अपने साथी की बात उड़ा दी। वो तीनों अपने मकसद के हसूल में नाकाम रहे थे। कॉफी का दौर खत्म होने के साथ इजलास भी खत्म हो गया। इन तीनों ने इमारत के बैरूनी दरवाजे तक आकर हमें गर्मजोशी से रुखसत किया। वहां हमारी रहनुमाई या निगरानी के लिए एक बावर्दी घोड़ा मुस्तैदी से खड़ा हुआ था। मेरी तवक्का के बरक्स निक ने भूल कर भी अपनी बीगन का कोई जिक्र नहीं निकाला था। गोरे ने गैर जरूरी तौर पर पार्किंग लॉट तक हमारी रहनुमाई की। वहां DIG की सरकारी जीप में ड्राइवर उसकी वापसी का मुंतजिर था। वो हमसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। हमारे सरों पर मुसल्लत अमरीकी मुहाफिज की मौजूदगी की वजह से हम तीनों के दरमियान किसी गैर रस्मी तबादला ख्याल की नौबत नहीं आ सकी थी। कौंसल खाने की बुलंद फसील से बाहर निकलते ही जलाल ने आज़ादी का एक गहरा सांस लिया और कहा, इस इजलास के बारे में तुम्हारी क्या राय है?